Hello friends, welcome back again on my channel and I am Shreyans Tiwari who will be telling you all about India climate, and believe me, this video will clear all your doubts on India climate and it will be very interesting. So without wasting any time, let's begin. India climate by Shreyans Tiwari. We are talking about India climate. So first of all, we will be learning some interesting fact that, as you know, the monsoon is going on. This is the month, you can say July is going on and monsoon is going on. You all know that. Over to means when the monsoon starts, there are many festivals celebrated. The people who are living in I think Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra must be knowing about these festivals, that are Manijar festival in Chambal, Abhirukku festival in Tamil Nadu, and Nariyal Nariyal Purnima in Maharashtra. Which Purnima? Nariyal Purnima in Maharashtra. So in Himachal Pradesh it is celebrated as what? It is celebrated as Manijar festival. In Tamil Nadu it is celebrated as what? It is celebrated in Tamil Nadu? Adipurukku. And in Maharashtra it is celebrated as Nariyal Purnima. Okay. Now we'll start. Temperature of India has great variation. बहुत great variation है यहाँ पर. कैसे? Not only from season to season. Season से season ही नहीं. Region to region भी है and year to year. From region and year to year. Are you able to understand? See, I am explaining you. Are you able to see my cursor? Yes. Over here you can see this is Jammu Kashmir. Everybody knows. Okay. And Ladakh also. Over here you are seeing Rajasthan. It is showing a dark red color, that is hot and dry. And over here it is showing cold in Jammu Kashmir. Why is it so? Because India has a great variation in temperature. We will be studying about why it is there, that in because temperature always increases from, see over here, temperature that increases if you are standing in north. Okay, as you move in south, the temperature will increase and it will decrease if you move from south to north. Okay, have you understood this thing? Okay, the temperature increases when you move from north to south and temperature decreases when you move from south to north. Okay, now we have discussed the temperature of India can be 48 degrees Celsius in Rajasthan, and at the same time it can be minus 40 degrees Celsius in Leh Ladakh. माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. कहां पर? लेह लद्दाख में. आप समझे, क्योंकि नॉर्थ में और नॉर्थ में ज्यादा ठंड पड़ती है. अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा. और अब हम रेनफॉल की अगर तुलना करें तो यार राजस्थान में पार्ट में, क्योंकि विंड जो होती है यहाँ पर ड्राई होती है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता, तो यहाँ पानी नहीं गिरता है. आप सब जानते हैं थार डेजर्ट है यहाँ पर. हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा. और वहीं पर आप देख सकते हैं मेघालय है आपका, यहाँ पर शिलोंग है, इसी जगह पे शिलोंग है, और यहीं पर है आपका मोसिरम चेरापूंजी नियर मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ. You know 1142 centimeter, 1142 centimeter rainfall has occurred over here. Are you able to see variation? 10 centimeter only, over here 1142 centimeters. Great variation. Let's move to another slide and study more about this. Affecting the climate of India. So let's begin with this. If we are studying the climate, we should know what is the affecting, what is the climate, how climate is affected of our India. Now it will be clear why in Jammu Kashmir it is so and so. It will be clear. Factor affecting climate in India. Location. First of all is location. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं कहां से होता है? रन ऑफ कच्छ से चला, पूरा बांग्लादेश को कट गया, म्यांमार तक से वहां पर चला गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप समझ गए. अब ये कितने में डिवाइड कर रहा है? नॉर्थ साउथ. समझ गए आप लोग? अब क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हुआ? ये हुआ, इक्वेटर के पास है, आप जानते हैं यहाँ पर इक्वेटर है. और ये नॉर्थ क्या हुआ? सब ट्रॉपिकल.
That's why in summer there is a excessive heat in India because the southern और साउथ में अभी मैंने आपको बताया कि क्यों होता है. अभी आपने हमारी बात सुनी होगी पहले वाली स्लाइड में कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इक्वेटर के पास मतलब डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल रही है सन के द्वारा, इसलिए ये ज्यादा हीट हो जाता है समर में. आप लोग समझ गए होंगे. और ये इसलिए टेम्परेचर इज वेरी हाई ड्यूरिंग समर इन इंडिया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके. नाउ द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. नॉर्दर्न प्लेन रिमेन्स वेरी हॉट. आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स हॉट रहते हैं इन समर्स बिकॉज इट एक्सट्रीम क्लाइमेट. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं होते हैं, ये सब एरिया क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सीज के बगल में. अभी आप इस वाले पॉइंट पे समझ जाएंगे. ठीक है. अब टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जो टेम्परेचर है लो होता है कहाँ पर, समर्स में भी होता है. कहाँ पर? हिमालय में होता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड है. इट इज एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझिए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर लो होता है. ठीक है. अब वैसे ही आप देखिए यहाँ पर, अभी मैं आपको बताता हूँ. नॉर्दर्न प्लेन रिमेन्स वेरी हॉट, आप जानते हैं. अब हिमालय दैट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया होगा, यहाँ पर इंडिया नहीं होगा, यहाँ एशिया होगा, सेंट्रल एशिया, एंड हेल्प्स इन रेनफॉल. ओके. यहाँ पर से जो विंड आ रही है आपकी, ये यहाँ से पूरी विंड आती है, बहुत कोल्ड विंड आती है. यहाँ पर हिमालय एज अ बैरियर, इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन, समझ आए किसके बैरियर? बिटवीन कोल्ड विंड दैट आर कमिंग. दैट्स इट प्रिवेंट्स आवर कंट्री becoming too cold in winters. Okay. And it also helps in rainfall. अब हम समझ लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऐसा है कि जो सी होता है वहां पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है. आप लोग जानते होंगे, नहीं होगा तो मैं एक दिन एक उस पर वीडियो बनाना, आप कमेंट में लिख दीजिएगा. है तो उसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, आप लोग जानते हैं. तो उसकी वजह से वहां पर मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है. आप लोग समझ रहे हैं, वहां पर ना ज्यादा ठंडी पड़ती ना ज्यादा गर्मी पड़ती है. आप समझ रहे हैं ना. अब आपको मैं एग्जांपल दूं, जो कोस्टल प्लेन है जैसे मुंबई, वहां पर अगर कोई आपका रिलेटिव रहता होगा, आप लोग जानते होंगे वहां पर ज्यादा गर्मी या ठंडी ज्यादा नहीं पड़ती है. वहां इक्विबल क्लाइमेट होता, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म. उसी प्रकार से अगर आप यहाँ डेक्कन प्लेटू, आपको हमने पढ़ाया था, दूसरी वाली वीडियो में जा सकते हैं. यहाँ पर इस जगह यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा. क्यों एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा? इसलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा क्योंकि ये सी से दूर है, और नॉर्दर्न पार्ट होगा क्योंकि ये तो पूरा सी के दूर है, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा. विंटर्स में बहुत ज्यादा, समर्स में बहुत ज्यादा. ठीक है. विंटर्स में बहुत कम टेम्परेचर होगा, विंटर्स में बहुत कम टेम्परेचर होगा, और समर्स में बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा. ठीक है. चलते हैं. हमारा सीजन ऑफ इंडिया. वैसे तो मोस्टली हम लोग 4 सीजन मनाते हैं, दैट आर समर्स, आप जानते हैं, समर्स, विंटर, मॉनसून एंड ऑटम, दैट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. अब हम जानते हैं थोड़ा सा समर्स के बारे में. वैसे मोस्टली यहाँ पर लिखा मार्च टू में, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो समर सीजन होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है आपका मिडिल ऑफ मार्च, क्योंकि ये विंटर मिडिल ऑफ मार्च में खत्म हो जाता है. तो मिडिल ऑफ मार्च टू एंड ऑफ मई, और कहीं प्लेसेस तक जून तक भी रहता है, कहीं तक जून तक भी रहता है, कहीं कहीं प्लेसेस पे. जैसे कभी कभी लखनऊ में भी जून तक रहता है, बहुत गर्मी होती है. और यहाँ पर आप कहाँ जा सकते हैं? माउंटेन्स जा सकते हैं, हिल स्टेशन जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, घूम सकते हैं समर्स में. ठीक है. अब आप विंटर्स में आ जाइए. विंटर्स का क्या स्ट्रेचिंग होता है? ये मिडिल ऑफ नवंबर से आपका मतलब मान के चलिए शुरू हो जाता है, और मिडिल ऑफ नवंबर मतलब दिवाली के टाइम पे शुरू हो जाता है, और आपका होली तक आराम से खिंच जाता है विंटर्स. इसीलिए जनवरी और फरवरी यहाँ के बहुत मतलब कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेडिंग्स की ज्यादा अरेंजमेंट विंटर्स में किया जाता है, क्योंकि प्लीजेंट वेदर होता है, ठंडी रहती है, सबको अच्छा लगता है. कहाँ जा सकते हैं? बीचेस जा सकते हैं, डेजर्ट स्टेट जा सकते हैं, विंटर मतलब ठंडी से राहत लेने के लिए. मॉनसून आपका मोस्टली स्टार्ट हो जाता है जून से ही, आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल विच मंथ? टिल एंड ऑफ सितंबर. इसमें अक्टूबर लिखा है, लेकिन आप मान लीजिए सितंबर तक ये खिंच जाता है, क्योंकि मिडिल ऑफ आपका जो मिडिल ऑफ सितंबर हो जाता है, उससे शुरुआत हो जाती है आपकी ऑटम की, और वो कब तक चलता है? मिडिल ऑफ नवंबर. फिर शुरू हो जाता है आपका विंटर्स. चलिए,
हैं कोल्ड वेदर सीजन। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको अच्छे समझा सकूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आएगा यहाँ पर। चलिए आप कोल्ड वेदर सीजन हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। कोल्ड वेदर सीजन क्या है? कोल्ड वेदर सीजन ऑल्सो नोन है विंटर सीजन। ओके ओके फ्रेंड्स, सो कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट फ्रॉम middle of November to the middle of March. You all know the temperature generally low. The temperature generally low, as you all know. The mean temperature नॉर्थ में आप जानते हैं, हमने बताया था नॉर्थ में कम होता है टेम्परेचर और साउथ में ज्यादा होता है, क्योंकि as we move from south to north the temperature decreases. So यहाँ पर क्या होता है? less than 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? above 20 डिग्री सेल्सियस। ये above 20 डिग्री सेल्सियस जाता है और ये बिलो आपका 20 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, और ये सदर्न में अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो डेज आर जनरली वार्म, आप लोग जानते हैं, और नाइट्स बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ है आपका विंटर्स का, भी मैंने आपको बताया। और मेजर ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया आप जानते हैं इसकी इन्फ्लुएंस में रहता है विंटर्स में। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि यहाँ पर पूरा इंडिया जब ड्राई रहता है, ठंडी रहती है, तो यहाँ पर बारिश कैसे होती है समझिए। ये आप जान रहे हैं कौन सी विंड है? सोचिए क्या है, यहाँ पर लिखा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लिखा है, ये यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पर क्यों नहीं बारिश हो रही है? क्योंकि लैंड से आ रही फ्रेंड्स, दे आर कमिंग फ्रॉम लैंड्स। If they are coming from land, they are not having any moisture. If they are not having any moisture, how will the precipitation will take place? How the rain will take place? And over here you can see they are coming from Bay of Bengal. Are you able to see? Over here they pick up the huge amount of moisture and cause a rainfall in Tamil Nadu as they are moving from Tamil Nadu. Okay, have you understood? I think you all have understood about this. अब आप सोचते हैं कि कभी कभी हमारे लखनऊ में भी बारिश आ जाती है, क्यों होता है ये भी हम समझा देते हैं। आप जानते हैं मेडिटेरियन सी अफ्रीका के ऊपर ही है, मेडिटेरियन सी, वहां पर जो साइक्लोन आते हैं, क्या आता है? साइक्लोन अकर होते हैं वहां पर, तो साइक्लोन घूमते 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 यहाँ पर टकराते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब ये साइक्लोन टकराते हैं तो नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या आ जाता है? स्नोफॉल हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग, स्नोफॉल आ जाती है, और यहाँ पर लाइट रेन हो जाती है, यहाँ पर रेन भी आके आ जाती है, और यहाँ पर आपका क्या होता है? रेन आती है और स्नोफॉल भी हो जाती है। तो साइक्लोन आर कॉल्ड, ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्ट साइड से आ रहे हैं दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाते हैं। ये कैसे फॉलोड होते हैं? वेरी कोल्ड, आप जानते हैं ठंडी बहुत कभी पड़ जाती है, एकदम असहन ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो दे आर अकम्पेनिड विद अ वाइड स्प्रेड फॉग भी चारों तरफ हो जाता है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे चलते चलते आप पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आपका हॉट वेदर सीजन भी आपको समझा देते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा इसमें आपको नहीं समझना है। हॉट वेदर सीजन क्या है? हॉट वेदर सीजन आल्सो नोन एज प्री मॉनसून सीजन। व्हाई इट इज नोन एज प्री मॉनसून सीजन? यू शुड आल्सो नो दैट प्री का मतलब दोस्तों क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा प्री बोर्ड, प्री एग्जामिनेशन, प्री वेडिंग। तो इसके मतलब प्री मतलब पहले, किसी से पहले जो चीज होती है उसे कहता है प्री। तो उसी प्रकार मॉनसून से पहले जो होता है सीजन, उसको कहते हैं प्री मॉनसून सीजन, दैट इज हॉट वेदर सीजन। इट स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च टू एंड ऑफ मे, कहीं जून तक भी चला जाता है। और इसमें बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। क्या क्या गर्मी होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं? लू, द commonly known as loo in northern plains, the hot, dry, dust-laden winds in India that blow over northern plains are called loo. That's why आपने अपनी मम्मी के द्वारा या अपने पापा के द्वारा कभी आपने सुना भी होगा कि बाहर ना निकलो, लू चल रही है, इसी की वजह से, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और ये बीमार भी कर देती है। अब यहाँ पर लू आपकी आ गई, आप लोग जान गए। अब कभी कभी यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स भी चलते हैं। आप जानते हैं डेजर्ट्स एरिया में डस्ट स्टॉर्म भी बहुत भयंकर तरीके से चलते हैं समर्स में, मतलब जिसमें डस्ट होती है, खूब गर्मी लगती है, उसमें चलता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर अब तक का कितना रिकॉर्डेड हुआ है? 48 डिग्री सेल्सियस कहाँ रिकॉर्ड हुआ? राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ? राजस्थान में। अब कभी कभी गर्मियों में भी आप बारिश हो जाती है। अब वो काहे के लिए, कहाँ पर हो जाती है? ये देखिए कर्नाटका है इस जगह,
ये कर्नाटका आपका स्टेट है, पूरा कर्नाटका है। ये जो कर्नाटका पे है, यहाँ पर जो शावर्स आते हैं, प्री मानसून शावर्स, उसको कहते हैं हम लोग मैंगो शावर्स। वहां पर कर्नाटका में कहा जाता है। कर्नाटका मैंगो के लिए भी बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। जो प्री मानसून शावर बहुत ही मतलब कि आप समझिए राइपनिंग जो होता है, पक जाते हैं जब वो पानी गिरता है वहां पर कर्नाटका में, तो मैंगो जो होते हैं अच्छे से पक जाते हैं। अब देखिए फिर से वेरिएशन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बून है कर्नाटका के लिए, आशीर्वाद है। वहीं पर देखिए काला बैसाखी और बरदोई चिल्ला जो है, ये वहां पर मतलब तबाही मचाते हैं। आप समझ रहे हैं, थंडरस्टॉर्म्स, ये थंडरस्टॉर्म जो होते हैं यहाँ एक्सपीरियंस होते हैं। कहाँ पर? आसाम में बरदोई चिल्ला कहलाते हैं, काला बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर आपका थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, मतलब विंड्स बहुत तेज चलती हैं, पेड़ लहरते हैं, बिजली कड़कती है, सब होता है। काला बैसाखी का नाम आपको जानते हैं कैसे पड़ा है? काल मीन्स कलामिटी, बैसाखी मीन्स बैसाखी का टाइम जो चलता है आपका, जून जुलाई सब बैसाखी का टाइम चलता है। अब जो आपका आ गया बरदोई चिल्ला, ये एक लीजेंड्स है, एक स्टोरी है, उसके ऊपर बनाया गया है। बरदोई का मतलब बहुत है, और चिल्ला एक मतलब एक गर्ल थी, वो बहुत तेज दौड़ रही थी, तो उसी पे इसको बहुत तेज दौड़ रही थी, तो उसी की तरह उन लोग ने बताया है कि बरदोई चिल्ला ऐसा है, खूब तेज तेज विंड चलती, जैसे चिल्ला एक लेजेंड्स में दौड़ रही थी, मतलब एक स्टोरी में जैसे दौड़ रही थी उससे रिलेट किया है। उसी प्रकार बरदोई चिल्ला, उसमें ऐसा तो बहुत तेज तेज विंड चलती है, पेड़ लहरते हैं, और आपने सुना होगा न्यूज में खूब आता है। और that the loss of life is also there sometimes. So it is because of Bardoi Chilla and Kala Baisakhi. Over there it is experienced in eastern India. Now let's move. सीजन हम लोग आज समझ लेते जल्दी से। आप लोग जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस मत करिए, अच्छे से समझ लीजिए। मानसून सीजन आप जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है हमारा, क्योंकि हम लोग कौन सा मतलब सीजन एक्सपीरियंस करते हैं? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट करते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक, अब हम समझ लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट कब होता है? जून में स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहता है? सितंबर तक। मौसम का ये मानसून का शब्द कहाँ से आया है? Where the monsoon has derived from the Arabic word which is meaning is मौसम, मौसम which is meaning is season. Okay, मौसम which meaning is season due to the excessive heat. आप इसको समझिए बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खूब हीट होती है समर्स में, आप जानते हैं, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर कूल रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जो लैंड होता है बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है, और कूल है वो थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने के लिए, ठंडा होने के लिए, तो ये ठंडा रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। इतना लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पर, जो इक्वेटर में जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे ऐसे जो ब्लो कर रही होती हैं, वो इतना अट्रैक्ट हो जाती हैं किसकी तरफ से? लो प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमेशा आप लोग जानते हैं लॉ है कि विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो ये इंडिया की तरफ आ जाती हैं। तो अब इनको क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड। क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड। आप लोग समझ गए होंगे साउथ वेस्ट मानसून विंड। और क्यों इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि रोटेशन होता है जो अर्थ का, उसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इनका जो डायरेक्शन होता है यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है फिजिकल फीचर्स की वजह से। आइए चलिए उसको भी हम जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। द इंडियन पेनिनसुला, अब इसको समझिए आप कि दो दो क्यों डिवाइड हो गया। इंडियन पेनिनसुला जो है आपका, ये इनको दो डिवाइड कर देता है। साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट ट्रेड विंड जो आती हैं, उनको वो पूरा डिवाइड, साउथ ईस्ट जो होती है आती हैं, और फिर जब वो साउथ वेस्ट बन जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, तब उनको डिफ्लेक्ट करता है, मतलब डिवाइड कर देता है। अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, कौन सी ब्रांच? अरेबियन सी ब्रांच, एंड बे ऑफ बंगाल सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच, द अरेबियन सी ब्रांच hits this western coast and moves northwards. ये नॉर्थवर्ड्स जाती है, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, दिल्ली लखनऊ हर जगह यहाँ पर। और जो यहाँ पर होती है आपकी, जो जा रही हैं, आप देख सकते हैं ये सब जो जा रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है।
ये फिर यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ये शिलोंग प्लेटू है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर अब जानते हैं इतना तेज यहाँ बारिश क्यों होती है मौसियाराम में, जानते हैं? क्योंकि इतना सारा मॉइस्चर, यहाँ पर तो मॉइस्चर कभी कभी छोड़ देती है विंड्स, क्योंकि पूरे यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पहुंचती है। अब यहाँ पर तो कहीं इसको जाना ही नहीं, सी से ही पूरा होके आ रही, तो यहाँ बहुत तेज तरीके से टकराती है और बारिश होती है। और यहाँ पर जो शिलोंग प्लेटू है इनको डाइवर्ट कर देता है और फिर ये इस नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाती है और ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों मीट कर जाती हैं, एक जगह आ जाती हैं और फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं तमिलनाडु में क्यों नहीं पड़ता है। मीन्स तमिलनाडु आप जानते हैं कि जो रेन शेडो एरिया है उसमें आ जाता है। अब कैसे आ जाता है वो हम अभी आपको समझाएंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करिए। अब देखिए हम आपको समझाते हैं। जो आपका ये है पूरा, ये ऐसे जा रही विंड्स, तो ये पैरेलल है ना। अगर ये ऐसे समझिए, ये विंड्स जो हैं ये आपकी ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पे जब हिट करें तो हो जाएगी। जब इसके पैरेलल है और यहाँ पर ये वाली क्यों नहीं आ रही, जब इसके पैरेलल है तो यहाँ पर कोई बारिश तो होनी नहीं है। अब तब फिर यहाँ क्यों आ रही है ये भी जानिए। ये रेन शैडो एरिया में आ जाता है, यहाँ पर हिल्स है ना, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं आपके वो लीवर्ड साइड पे आ जाती है, मतलब रेन शैडो एरिया आप लोग जानते होंगे। रेन शैडो हमने एक बार आपको समझाया भी था, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। जो रेन शैडो एरिया होता है वहां पर जो जाती है विंड्स, उसके पीछे हिल्स होते हैं, यहाँ पे हिल्स होते हैं। तो यहाँ पर बारिश हुई और यहाँ से पानी निकल गया। अब यहाँ पर पानी नहीं आता है तो ये रेन शैडो एरिया हो गया, और यहाँ पर पैरेलल है तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मॉनसून सीजन हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ये बिगिनिंग हो जाती है इसकी जून में, इसको क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें सारा आपका पूरा इंडिया क्लाइमेट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इंडियन ओशन से आती है तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है, कितना, बहुत सारा, खूब ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी हाई, आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा आती है, इतनी रेनफॉल ज्यादा होती है कि क्योंकि सब इंडियन ओशन से रेनफॉल का मॉइस्चर लेके आती है। अब हमने बताया है कि रेनफॉल कैसे डिक्रीज होती है, एज यू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान आ जाता है, यहाँ पर ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी चीज हम आपको समझा रहे हैं कि कोस्टल एरिया से भी डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर होता है कोस्टल एरिया में, तो जल्दी से पूरा मॉइस्चर लेके आती है, ज्यादा ज्यादा यहीं पर टकरा के यहाँ पर मॉइस्चर हो जाती है। तो कोस्टल एरिया से जब बाहर जाते हैं तब वहां मॉइस्चर कम, इसलिए मुंबई में ज्यादा बारिश होती है, आप लोग जानते होंगे, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आपको बताते हैं कि जो साउथ टू नॉर्थ, आप समझ गए होंगे, आप साउथ से नॉर्थ जैसे आप जाएंगे वहां पर भी कम हो, यहाँ पर ज्यादा नहीं होती जम्मू कश्मीर में। अब जैसे यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर ज्यादा आपकी बारिश हो जाएगी, इस साइड पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसको हम अब आपका रब कर देते हैं पूरा, जिससे आप लोग को सही से दिख जाए मैप और समझ जाए आप लोग, ठीक है मित्रों। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड एट ये अनपंक्चुअल होती हैं और इरेगुलर होती हैं। ये इस जगह समझिए बहुत ज़्यादा फ्लड ले आई, इस जगह फ्लड ले आई, और इसी जगह पर सेम टाइम पे यहाँ पर इनकी विंड्स नहीं पहुँच पाई तो यहाँ ड्राउट हो जाता है। इसलिए ड्राउट्स भी ला सकती है, सूखा भी पड़ सकता है इनके कारण, और बाढ़ भी आ सकती है। अब जल्दी समझ लेते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ सितंबर एंड कंप्लीट्स टू द मिडल ऑफ नवंबर, आप लोग जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीट इज स्लो एंड ग्रेजुअल। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर are marked by the clear skies and slight rise in temperature. What is this? Slight, very slight rise in temperature. How weather become oppressive, क्योंकि देखिए पानी बरसता नहीं है तो उमस बहुत रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, और so there is a great amount of humidity and high humidity, high heat. This is known as October heat. This is very oppressive. No one can, means most of the people does not like that October heat. The period is from hot to cold and wet to dry. You all know. That's why your parents say sometimes that don't go outside because weather is changing, because of weather he got fever. That's why it is said. Now the season first begins from Punjab. Season of retreating monsoon in the 1 September,
मिडल और मीन स्टार्टिंग ऑफ 78 यहाँ से शुरू हो जाता है जाना, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है यहाँ पर आपकी, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है वो टेक ओवर कर लेती है और ये आपकी साउथ वेस्ट चली जाती है। अब ये याद आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब नॉर्थ ईस्ट सीजन, आप लोग समझ गए होंगे। बे ऑफ बंगाल में कुछ साइक्लोन भी अकर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले, बहुत मतलब एक दो महीने पहले आई थी, 1-2-3 महीने पहले आपको खबर आई थी कि बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा तूफान आया है, उसकी समीक्षा करने प्रधानमंत्री गए हैं। तो उसी की वजह से ये आपका मुंबई में बहुत बड़ी बाढ़ आई है, वो मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आया है, उसको लोगों ने देखने गए हैं। कोची में बहुत बड़ा है तो प्रधानमंत्री देखने गए। ये सब आपने सुना होगा, इसी की वजह से हो जाता है। बे ऑफ बंगाल में आया है, कभी कोलकाता में एक आया था तूफान है, और इसी के कारण ये सब चीजें आपका जो साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, क्या डिस्ट्रक्टिव, उसमें लाइफ का हार्म हो जाता है। इट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा, यू ऑल नो दैट, ठीक है। अब चलिए, अफान तूफान आया था यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे इसी सीजन में, मतलब जब रिट्रीटिंग मौसम हुआ था तो अफान तूफान आया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब बस ये आखिरी टॉपिक है, हम लोग समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है। हमारी वेरिएशन बहुत है, हमारे इंडिया में खूब वेरिएशन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मौसम हम लोग दिस रेनफॉल वी आर स्टडिंग ओवर हियर जम्मू कश्मीर द एरिया रिसीव less than 50 centimeter of rainfall. You know that Ladakh in Jammu Kashmir and some part of Himachal, Lahore, Spiti is there, and Kannauj district, they get minus means 50, less than 50 centimeter. Or you can see the western Rajasthan Thar desert. Are you able to see 0 to 20 they are getting? Okay, over here you are seeing this Mausoleum. Over here they are getting 400, above 400 centimeter of rainfall. Why? I have told you, na, they are coming with a great moisture, and when they hit over this, they cause a great rainfall over here. Are you able to understand? So above 400 degree in Meghalaya. Now I am telling you, in western coastal plain, the western slope and western ghats, Meghalaya and Brahmaputra valley receive very heavy rainfall, more than 200 centimeters. Middle Ganga valley, ये middle Ganga valley है, आप लोग जानते हैं पूरा middle Ganga valley. They receive rainfall of about, and Odisha, Maharashtra, part of Odisha, they receive about 100 to 200 centimeters. And upper Ganga valley, ये आप देख सकते हैं, अब ये upper Ganga valley आप देख सकते हैं, यहाँ 100 to 200 आपका मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर गंगा वैली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपर गंगा वैली से ईस्टर्न राजस्थान, आप ईस्टर्न राजस्थान देख रहे हैं यहाँ पर, ये ईस्टर्न राजस्थान ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर रिसीव rainfall of 50 centimeter to 100 centimeter, sometime it is 200 centimeters, okay. And average in annual rainfall, average of annual rainfall, and in western Rajasthan and Jammu Kashmir we see less than 50 centimeters. तो आज मैंने आपका ये पूरा इंडिया क्लाइमेट का लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं जो आपको दूसरा लेसन, आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं बनाऊंगा, आपको आप लोग को भेजूंगा, मतलब यूट्यूब पे मैं डालूंगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का हमने टॉपिक इंडिया क्लाइमेट खत्म हो गया, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी बनी होगी, क्योंकि हमने ये जो पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म किया ताकि अच्छे से लोगों को समझ आ पाए, पार्ट्स के लिए वेट ना करना पड़े, इसलिए हमने आज इसको खत्म कर दिया पूरा इंडिया क्लाइमेट। सो ऐसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब न्यू वीडियो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, आपको जो न्यू वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं बनाऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कीप सपोर्टिंग लाइक दिस, एंड your motivation will help me in the future, and just like, share and subscribe my channel. Thank you very much.